Hundreds of junior doctors and paramedics have boycotted duty across medical colleges and hospitals in the state to demand better safety and security in state-run hospitals. The students are now demanding a fair probe and an overhaul of the security system at their hospitals where many women work through the night. This comes in the wake of alleged rape and murder case of a postgraduate trainee doctor. She was found dead inside the government-run R.G. Kar Hospital in Kolkata. Meanwhile, the police has registered a murder case and a special investigation team has been formed to probe the incident. The victim, who was a second-year postgraduate student, was found unconscious in the seminar hall of the Medical College Hospital at around 11:30 a.m. yesterday. She was later declared dead. Now, according to reports, there were injuries in private parts. Her face, her neck bone was reportedly broken as well. The police have added rape charges to this case and have arrested one person for the alleged involvement. This person and the accused has been identified as Sanjay Roy. He's been arrested on the basis of CCTV footage from the hospital. Additionally, the police also recovered a Bluetooth device in the room where the crime had taken place. They used this device in order to identify the accused. The device was used, it was switched on and it immediately connected to Sanjay Roy's phone. The accused has meanwhile been sent to a 14-day police custody. With us on the broadcast live is my colleague Rainik Datta reporting from Kolkata. Rainik, you were on the streets yesterday as well when the protests were taking place. You'd spoken, in fact, to a couple of students who are out there holding those banners high, crying for justice on the streets. What do they have to say today? एकदम देखिए, ये पूरा घटना में कल भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ था, आज भी सुबह से प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। मगर अभी तक ये पूरा घटना में संजय राय को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से 2 सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट ड्यूटी में था उसी टाइम में वो 2 सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड किया गया है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि सुभाषिष मंडल और अमित कुमार दास ये 2 मौजूद थे उस रात को सिक्योरिटी के तहत और इसके ये लोग सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये संजय राय अंदर जा पाए। मैं एक बार दिखाऊंगा, ठीक मेरा पीछे ये जो जगह है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ये जो गेट है, इसी गेट के अंदर से अंदर गए थे संजय राय और उसी टाइम में ये 2 जो सिक्योरिटी गार्ड वो इधर मौजूद थे। वो लोग मौजूद रहने के बावजूद भी किस तरीके से संजय राय अंदर जा पाए, संजय राय का कोई कार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी किस तरीके से वो अंदर जा पाए, इसी वजह से ये 2 को सस्पेंड किया गया है आरजी कर की तरफ से। और मैं एक बार दिखाऊंगा कि आज सुबह से ही दिखाई दे रहा है फिर से जो स्टूडेंट्स है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स है, उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है वो लोग इधर खड़े हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। आप लोगों का डिमांड क्या क्या है? अभी थोड़ी देर बाद में हम लोगों का मीटिंग चल रहा है, उसके बाद हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होगा, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। इस तरीके का जो परिस्थिति तैयार हुआ है उसमें जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसको लेकर एक बार सवाल आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? কিছু বলা নেই, এখন একটা আমাদের মিটিং চলছে, ওখানে যা ডিসিশন হবে সেটাই আমরা বলবো। প্রেস কনফারেন্স আলাদা ডাকা হবে, তখন বলা হবে। এখন আমরা কেউই কিছু বলতে পারছি না, ঠিক আছে? वो लोग कह रहे हैं कि एक मीटिंग चल रहा है उन लोगों के साथ अथॉरिटीज़ का, यानी उन लोगों का कल तक जो डिमांड था वो डिमांड्स को लेकर मीटिंग चल रहा है। उसके बाद ही वो लोग बात कर पाएंगे कि उन लोगों का जो मांग था वो मांग पूरा किया गया है कि नहीं। मगर आज भी उनके तरफ से जो जस्टिस के मांग करते हुए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आप पोस्टर्स भी देख सकते हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी जगह में पोस्टर मिला है कि जिस तरीके का हादसा ये लड़की के साथ हुआ है, जिस तरीके का हादसा सेकेंड ईयर के ये स्टूडेंट के साथ हुआ है, उसी तहत जो जस्टिस है वो जस्टिस मिलना चाहिए। और जिस तरीके का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक सवाल उठता है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उसको लेकर भी क्या क्या स्टेप आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से लिया जाएगा, इसके ऊपर भी नज़र है। कुल मिला के बोल सकते हैं पूरा ये मामले को लेकर एक तरफ जो स्टूडेंट की तरफ से बार बार से डिमांड किया जा रहा है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनको दिया जाए, जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिया जाए। और उसी तहत इन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये पूरा मामले में संजय राय जो है वो किस तरीके से अंदर गया, कि क्या क्या किया और क्यों इस तरीके का हरकत उनकी तरफ से किया गया, इसके ऊपर भी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। Indeed,
And you've already informed our viewers that two security guards have already been suspended, namely Subhashish Mondal and Amit Kumar Das, who were on duty that fateful night when the heinous crime had occurred. But that's not all. Can you also shed light on what exactly the post-mortem report had said, and under what sections in particular? We are getting to know that there's section 103 and section 64 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, under which the case has been filed. एकदम देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा ये जो पूरा घटना को लेकर पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया है, पोस्टमार्टम के टाइम में बॉडी में बहुत सारे जगह में मार्क्स मिला है, जिसमें से ये जो लड़की थी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का जो दो आँख से खून निकल रहा था, मुंह तोड़ा गया था, मुंह से ब्लड निकल रहा था, और उसके साथ साथ ही फेस में बहुत सारे मार्क्स है, और उसके साथ उनका जो कॉलर बोन, राइट साइड का जो कॉलर बोन, वो कॉलर बोन टूटा हुआ है। और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है जो प्राइवेट पार्ट्स है, वो प्राइवेट पार्ट से भी बहुत सारे ब्लीडिंग हो रहा था, और इसी वजह से पुलिस का जो लगता है कि ये जो लड़की का गला घोटकर खून किया गया है, और इसी वजह से जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन टूटा है। ये पूरा प्राइमरी रिपोर्ट आया है ये पोस्टमार्टम से। दूसरा बात अगर कहा जाए कि ये जो प्राइम एक्यूज संजय राय, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है करीब रात को 4 बजे के आसपास संजय राय इसी रास्ते से अंदर पहुंचे थे, और आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का अंदर में वो पहुंचने के टाइम में वो सिविक वॉलंटियर होने के नाते उनको मालूम है कि कौन से रास्ता से ऊपर जा सकता है, और उसी वजह से वो इधर से एंटर करने के बाद पैदल 4th फ्लोर में पहुंचे थे। चौथे माले पे पहुंच के चौथे माले का जो सेमिनार हॉल, उस सेमिनार हॉल में वो पहुंचे थे। उसी टाइम में वो लड़की सोई हुई थी, सो रही थी, और उसके बाद ही उनके ऊपर हमला किया, उनका पहले रेप किया गया, उसके बाद गला घोट के उनका खून कर दिया गया। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने आया है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और ये पूरा मामले में रेप एंड मर्डर केस का जो चार्जेस, वो चार्जेस पुलिस की तरफ से दिया गया है। और उसके साथ साथ ही ये जो पूरा घटना में ये संजय राय को कोई हेल्प किया था कि नहीं, यानी इधर से अंदर जाने में संजय राय को कोई हेल्प किया था कि नहीं, इस बारे में भी पुलिस का नज़र है। अगर कोई हेल्प किया तो वो कौन है, सिक्योरिटी ब्रीच किस तरीके से हुआ, सीसीटीवी जो कैमरा है, जो सीसीटीवी कैमरा है 4th फ्लोर में, उसका जो वो तस्वीर से ही ये संजय राय को अरेस्ट किया गया। पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये संजय राय जो है, इसके जो ये जो एंटर कर रहे थे, इसके गले में एक ब्लूटूथ हेडफोन था, मगर वो निकलने के टाइम में उसका हेडफोन नहीं था उनके पास। मगर वो जो हेडफोन, वो जिस जगह का डेड बॉडी रिकवर हुआ है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस से ये हेडफोन बरामद हुआ पुलिस के पास। और हेडफोन संजय राय का जो मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और इसी वजह से ये हेडफोन के वजह से ही संजय राय को अरेस्ट करना पॉसिबल हुआ पुलिस की तरफ से। और ये संजय राय को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम पड़ा कि 4 बजे वो उधर पहुंचते हैं, प्लेस ऑफ ऑकरेंस में पहुंचते हैं, पूरा क्राइम करते हैं। क्राइम संगठित करने के बाद वो निकलकर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर, ये जो बाहर में आप जो रास्ता दिख रहे हैं, उस बाहर का रास्ता में वो पहुंचे, और इधर करीब 1 घंटे के ऊपर वो घूमने के बाद वो इधर से साउथ कलकत्ता के तरफ चला गया। ये जो पूरा घटना पुलिस की तरफ से विवरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनका जो फैमिली मेंबर से डिमांड किया जा रहा है कि ये जो पूरा जांच है, ये पूरा जांच का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और उसके साथ साथ ही ये भी डिमांड रखा जा रहा है कि जो भी प्राइम एक्यूज्ड है, जिस तरीके से ये पूरा क्राइम हुआ है, इस क्राइम होने के तहत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स है जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनका रेस्ट रूम सही तरीके से होना चाहिए। जैसे कि कल भी स्टूडेंट की तरफ से डिमांड किया जा रहा था कि वो लोग अब इधर जो रहते हैं, ठीक ये जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज है, इधर जब वो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, उसी टाइम में उन लोगों का कोई रेस्ट रूम नहीं है, प्रॉपर कोई रेस्ट रूम नहीं है, लड़कियों के लिए कोई रूम नहीं है। और ये जो डिमांड फुलफिल हो स्टूडेंट के, ये मांग है। और उसके साथ साथ ही सिर्फ कोलकाता का आरजी Rene, coming to the security lapses, you've of course addressed that, and you've also tried to speak to people around you, but they currently seem quite hesitant. They maintain that there is in fact a crucial meeting that is underway between the association that is representing the doctors as well as the authorities, and they will only speak after
that meeting is over. But at the same time, the IMA has issued some very stringent demands. They have called for enhancing the safety of the doctors, especially women in the workplace. They have called for an impartial investigation and an arrest and punishment of the culprits in this matter. They've also issued an ultimatum stating that the authorities have 48 hours to act, following which there will be a nationwide protests. They have in fact cited a couple of lapses. You of course have mentioned the lack of a rest area in the region. Some have even called about the lack of the CCTV coverage in the particular area, stating that there are very few CCTVs in the area. Most of the CCTVs that are there are not functional as well. They also flagged the entry that is being provided to people who are being let in unauthorized in this matter as well. There are in fact several complaints that have been raised by the doctors over there, who've stated that some patients come with 11-12 relatives, and ideally only people with ID cards should be allowed inside. But there is no screening that takes place, and they don't have any strict regulations with regards to unauthorized entry in this manner as well. There is no rest area for people who are working the night shift as well. The doctor to patient ratio is also very low. There is a high influx of trauma patients in that particular hospital, the RG Kar Hospital as well. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.